Hello students, how are you? I hope you all are good at your home. Well, okay beta. So in my previous videos I have told you about parts of speech, that there are total 8 parts of speech, and first one we have already done, that is noun. What is a noun we have already done. So today we will come to pronoun, second part of speech, and that is pronoun. As the name itself suggests, it is pronoun, means it has noun in its name. That means it is somewhere related to noun. कहीं ना कहीं इसका relation noun से है, और वो relation क्या है, we will see that. I have written some linings over here. That is, Shreya is 8 years old. Shreya studies in 8th class. That house is Shreya's. Now in this, what we have seen, that I have used word Shreya many times. Who is Shreya? Shreya is 8 years old. How old she is? She is 8 years old. And in which class she studies? Shreya studies in 8th class, right? So I have used this word Shreya again. So when we speak this word, this noun, Shreya is what? A noun. Why it is a noun? Because it is the subject of all these sentences. So speaking Shreya again and again makes our speech quite boring and dull. So what we will do? We will use pronoun. प्रोनाउन इज बेसिकली इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ हो, नाउन के साथ नहीं, नाउन की जगह पर यूज़ होता है, वो होता है हमारा प्रोनाउन. सो हम यहाँ पर प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे? श्रेया इज़ 8 years old. श्रेया स्टडीज इन 8th class, सो वी कैन यूज़ शी studies in 8th class. That house is Shreya's. So instead of Shreya's we can use hers. Okay, Shreya is 8 years old. She studies in 8th class. That house is hers. So हमने श्रेया की जगह पे क्या यूज़ किया? She and hers. अब हमारी स्पीच इंटरेस्टिंग बन गई, बोरिंग भी नहीं है, डल भी नहीं है. और वो किस लिए हुआ? बिकॉज वी हैव यूज्ड प्रोनाउन, दीज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस नाउन, दैट इज आवर प्रोनाउन. जो नाउन की जगह पर, नाउन को कंप्लीटली रिमूव करके नाउन की जगह पर आता है, वो होता है हमारा प्रोनाउन. प्लस द नाउन विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. यहाँ पर शी किसकी जगह पे आया था? श्रेया की जगह पे. यहाँ पर हर्ष, श्रेयास. तो जो श्रेया और श्रेयास थे वो इन प्रोनाउन के एंटीसीडेंट है. मतलब जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है. ओके, so I hope you all got what understand that what is a noun, pronoun. Okay beta, so now let's move to our types of pronoun. How many types of pronoun are there? There are basically 9 types of pronoun. That is personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, possessive, reflexive, emphasizing, distributive, indefinite and relative pronoun. These are 9 types of pronoun, and in this video we will do 4 types of pronoun. Remaining we will do in next video. Okay, so these 4 pronoun, first of all we will do personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and possessive pronoun. So let's first move to first type, and that is personal pronoun. So what is a personal pronoun? पर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो बेसिकली यूज होता है, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ यूज फॉर अ पर्सन और थिंग. ओके, इट इज यूज फॉर अ पर्सन और थिंग. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ऐसा वर्ड होता है जो एक पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, अब इस पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली वी हैव 3 persons. इसमें हमारे पास 3 persons होते हैं. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में क्या हमें चीज़ नोटिस करनी है? 3 person. ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड persons. Now these persons, when they are used as subject, what they will be? As an object. These persons will be, and then their number, are they singular or plural, and then their gender, are they masculine, feminine, neuter, what gender they are of. Okay, we will see that.
फर्स्ट पर्सन में पहले ये देखिए कि सबसे पहले ये पर्सन्स हैं क्या, व्हाट दीज पर्सन्स एक्चुअली डू। फर्स्ट पर्सन इज द वन हु स्पीक्स, जो भी बोलता है, जो बात कर रहा है, वो है हमारा फर्स्ट पर्सन, दैट इज मैं या हम, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन, अब बात कर रही हूँ तो मैं किसी से बात कर रही हूँ, देयर मस्ट बी समवन इन फ्रंट ऑफ मी विद हुम आई एम टॉकिंग, है ना, तो जिससे मैं बात कर रही हूँ दैट इज सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन इज बेसिकली about whom we are talking. फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर टॉकिंग अबाउट whom, थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, दैट इज आर थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकिंग वन, जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, दिस पर्सन टॉक टू, एंड थर्ड पर्सन द पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो है हमारा थर्ड पर्सन। ना फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले क्या आएगा, आई, सबसे पहले हम खुद आएंगे, ठीक है, आई, मैं, आई लाइक स्विमिंग, तो हमारा हु लाइक स्विमिंग, आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। अब यही आई ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आएगा, स्विमिंग इज लाइक्ड बाय मी, स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हुम, मी। ओके, तो ये जो मी है हमें किस वर्ड का आंसर कर रहा है, हुम क्वेश्चन का, स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हुम, मी। तो हुम जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पहले ही बताया है आपको प्रीवियस वीडियोज में। देन आई और मी जो है, क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है, वेल दिस इज सिंगुलर। व्हाट इज इट्स जेंडर, वेल ये मैस्कुलिन भी हो सकता है एंड फेमिनिन भी हो सकता है, इट कुड बी बोथ। देन फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल के तौर पे क्या आता है, वी, जब हम सब बात कर रहे हैं, जब दो तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, वी लाइक स्विमिंग, ठीक है, जब कई लोगों की बात हो रही है ना, वी लाइक स्विमिंग, तो हु लाइक स्विमिंग, वी, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्विमिंग इज लाइक्ड बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। अब ये जो वी है ये हमारा क्या है, प्लूरल, और इसका जेंडर भी क्या होगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ, कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है या फिर फेमिनिन भी हो सकता है। देन सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू हुम, यू, सेकेंड पर्सन हमारा हमेशा क्या होता है, यू। ओके, सेकेंड पर्सन हमेशा यू होगा, यू लाइक स्विमिंग। अब इसी को ऑब्जेक्ट के तौर पे स्विमिंग इज लाइक्ड बाय यू, यहाँ पर भी यू ही आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेकेंड पर्सन में यू ही रहता है। प्लस जो यू है ये हमारा सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, जो यू है ये सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, प्लस इसका जेंडर भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। ओके, देन थर्ड पर्सन में हमारे पास कई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ही लाइक स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हिम, और जो ही है ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर, और इसका जेंडर क्या होगा, मैस्कुलिन। ही कौन होता है हमारा, मैस्कुलिन। देन शी लाइक स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हर, सो जो शी है ये भी हमारी सिंगुलर है बेटा, और ये हमारी फेमिनिन जेंडर है। देन इट, the boy is playing with the ball, it is quite heavy, so it किसके लिए यूज हुआ है, बॉल के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट के तौर पे है इट। द बॉय किक्ड इट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बन गया, तो ये भी इट में ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही इट रहेंगे। दूसरा नंबर जो है इसका ये भी सिंगुलर है एंड इट इज ऑफ न्यूटर जेंडर। इट किस किस के लिए यूज होगा ये मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू नेक्स्ट। न्यूटर जेंडर क्या होता है बेटा, न्यूटर जेंडर इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हम करते हैं न्यूटर जेंडर। देन लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, दे लाइक स्विमिंग इज लाइक्ड बाय देम। ओके, दे का देम बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये होगा हमारा प्लूरल, और जेंडर क्या होगा बेटा, ऑल जेंडर्स, इसमें सभी जेंडर्स आ जाएंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, सभी जेंडर्स आ जाएंगे दे में हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे सबसे पहले, यू मस्ट रिमेंबर दीज पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और इनके अंदर क्या होता है, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। ओके, सो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। नाउ अब ये देखो इसमें इट क्या यूज रहेगा, इट कौन सा पर्सन है हमारा, थर्ड पर्सन,
और वो न्यूटर जेंडर में होता है। ओके, इट जो है बेटा ये किस किस के लिए यूज होगा? नॉन लिविंग थिंग्स प्लस एनिमल्स एंड अ चाइल्ड ऑल्सो। जो इट है हमारा एक चाइल्ड के लिए भी यूज होता है, क्योंकि जो चाइल्ड है वो छोटा है, वी कैन मिस आउट इट्स जेंडर, तो हम चाइल्ड के लिए भी इट लगा सकते हैं। दूसरा, मीनिंगलेस सब्जेक्ट्स। मीनिंगलेस सब्जेक्ट दैट रेफर टू weather, time, distance and temperature. तो सबसे पहले ये नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और चाइल्ड के लिए यूज हुआ। दूसरा, ये मीनिंगलेस सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज होता है, जो कि किसको रेफर करते हैं? वेदर, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर। जैसे मैं कहूँ इट इज 9 o'clock, तो जो इट है हमारा बेसिकली टाइम के लिए यूज हुआ है। इट इज हॉट, मे बी ये वेदर टेम्परेचर के रिगार्डिंग यूज हुआ है हमारा, ठीक है। इट, तो यहाँ पर इट किस किस के लिए आया? नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, चाइल्ड एंड ऐसे सब्जेक्ट जो मीनिंगलेस हैं और वो वेदर, टाइम या डिस्टेंस या फिर टेम्परेचर को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट कि इट हम किस किस के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। आवर सेकेंड टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड किससे बना है बेटा? डिमॉन्स्ट्रेट, और डिमॉन्स्ट्रेट मतलब टू पॉइंट समथिंग, टू शो समथिंग दैट दिस इज द पर्सन वी आर रेफरिंग टू। ओके, सो ये किसके लिए यूज होता है? अ वर्ड यूज्ड टू पॉइंट आउट noun that they refer to. Okay, demonstrative pronoun is basically a word which is used to point out noun that they refer to. ठीक है, जिस नाउन के लिए वो यूज हुए हैं उसको वो पॉइंट आउट करते हैं। और इसमें हमारे पास आता है दिस, these, that, those। ये चार तरह के हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज दिस, दीज, दैट, दोज। अब ये चार का यूज हमारा क्या है? सबसे पहले दिस, जो दिस है, मैं कहूँ दिस इज अ ब्यूटिफुल पेन। दिस इज अ ब्यूटिफुल पेन। अब ये जो पेन है यहाँ पर जो दिस है हमारा किसके लिए यूज हुआ? पेन के लिए। और ये कोई पास में ही चीज़ रखी हुई है जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहला जो दिस है ये हमारा होता है नियर ऑब्जेक्ट्स, ओके, प्लस ये होता है सिंगुलर। कोई नज़दीक की चीज़ है और वो सिंगुलर है तब हम यूज़ करते हैं दिस। तो यहाँ पर पेन के लिए यूज़ हुआ है और पेन मेरे पास में है और इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन। दीज, ये भी बेटा नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दीज आर ब्यूटीफुल पेन्स। दीज आर ब्यूटीफुल पेन्स मतलब ये सुंदर पेन हैं, बहुत सारे पेन हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ और ये भी पास में ही हैं। तो ये भी नियर ऑब्जेक्ट्स है प्लस ये प्लूरल है। ओके, जो दिस है ये नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, दीज भी नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, बट फर्क क्या है? दिस जो है ये सिंगुलर है और दीज है हमारा प्लूरल। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, दैट। जो दैट है बेटा मैं कहूँ दैट इज अ मैंगो ट्री। नाउ मैं ट्री की बात कर रही हूँ, जो दैट है हमारा किसके लिए यूज हुआ है? ट्री के लिए।
और मैं ट्री के लिए कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो एक मैंगो ट्री है। अब वो जो मैंगो ट्री है वो मुझसे कुछ डिस्टेंस पे है, मुझसे दूर है और सिंगुलर है, ठीक है। तो जब दूरी की हम बात करते हैं, दूर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं सिंगुलर को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। तो ये किसके लिए हो गया, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लस ये हमारा सिंगुलर है। नाउ लेट्स कम टू दोज आर मैंगो ट्रीज, वो मैंगो के ट्रीज हैं। तो हमारा जो दोज है ये किसके लिए हुआ, प्लूरल प्लस फार ऑब्जेक्ट्स, ओके, फार ऑब्जेक्ट्स प्लस प्लूरल। होप ये आपको समझ में आया जो दैट और दोज में क्या डिफरेंस है। दोनों ही दूरी के लिए यूज होते हैं, बट जो दैट है वो सिंगुलर यूज आएगा और जो दोज है वो प्लूरल, ठीक है। दिस एंड दीज नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस जो है सिंगुलर एंड दीज है प्लूरल के लिए, दैट है फार ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर, एंड दोज जो है वो भी फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट वो एक प्लूरल वर्ड्स के लिए आएंगे, ओके। एंड दैट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने बेसिकली जिस नाउन के लिए यूज किया उसको हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, और जब हम पॉइंट आउट करते हैं जिन नाउन के लिए यूज किया गया है तो वो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप, that is interrogative pronoun. What is an interrogative pronoun? Well, interrogative same interrogate word से बना है। interrogate means जैसे किसी को interrogate करना, interrogate मतलब questions पूछना, ठीक है। तो same way जो interrogative pronoun है ये किसके लिए यूज होते हैं, for asking questions, questions पूछने के लिए हम interrogative pronoun यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, who, whose, whom, what and which, ये 5 हमारे पास आए हैं, ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो who है और ये whose, whom, who, what, which हम किन किन के लिए यूज़ करते हैं। वेल जो who है, whose है and जो whom है, ये तीनों ही हम यूज़ करते हैं persons के लिए, और what and which हम यूज़ करेंगे things के लिए, ठीक है। अब देखो, who are you talking to, ओके, who are you talking to। अब जो आंसर होगा वो एक पर्सन होगा, whose are these books। अब बुक्स भी पोजेशन के लिए ही शो कर रहे हैं, सो यहाँ पर पोजेस कौन करेगा, कोई पर्सन ही। तो जो हमारा हुज हुआ है ये भी किसके लिए होगा, पर्सन्स के लिए। देन whom would you like to meet, whom would you like to meet। अब जिससे मिल रहे हो वो भी एक पर्सन ही है, ठीक है। नाउ what do you want, what do you want, now you want something and that is a thing। which of these books are yours। अब हम which किसके लिए यूज कर रहे हैं, बुक्स के लिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, थिंग के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। यू हैव टू रिमेंबर दैट हु, हुज, हुम है वो हमारा पर्सन्स के लिए यूज होता है, एंड व्हाट एंड विच किसके लिए यूज होता है बेटा, ओनली थिंग्स। सो नाउ दैट इज आवर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, सो व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। वेल पॉजेसिव प्रोनाउन अपने नेम के अकॉर्डिंग शो कर रहा है कि ये पोजेशन बताता है, ओके, इट शोज पोजेशन। और पोजेशन क्या होता है बेटा, जो आपके अधिकार में है, जिस पे आपका राइट है, या जिस भी इंसान का राइट है, जिसकी वो चीज़ है, ठीक है। सो किसकी वो चीज़ है, पोजेशन हमें शो करेगा ये। जैसे कि एग्जाम्पल, दैट हाउस इज हिज, किसका है वो घर, हिज का। दिस बैग इज माइन, किसका है ये बैग, मेरा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये
हमारे पर्सन से ही रिलेटेड हैं। हमारा जो हमने फर्स्ट किया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें मैंने आपको बताया था 3 पर्सन्स होते हैं, उसमें हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। नाउ पॉजेसिव शो, पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, इसमें मैंने सबसे पहले आई बताया था जिसका बन गया था मी, सेकंड था वी जिसका था अस। अब आई मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या बनेगा, आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग इज लाइक बाय मी, दैट दिस बैग इज माइन। ओके, आई परचेज्ड अ बैग, द बैग इज परचेज्ड बाय मी, दैट दिस बैग इज माइन। तो यहाँ पर जो माइन है ये आई मी का पॉजेसिव फॉर्म बनेगा, माइन। अस का वी बॉट अ बैग, वी बॉट बैग्स, bags were bought by us, those bags were ours. Okay, ours. Then second person था हमारा बेटा you, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट भी यही था। इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या बनेगा, this bag is yours, तो इसका पॉजेसिव फॉर्म बनता है yours का। देन थर्ड पर्सन में हमारा सबसे पहले हमने ही किया जिसका ऑब्जेक्ट था him, देन इसका क्या फॉर्म बनेगा, दिस बैग इज हिज। शी का बेटा शी, हर, दिस बैग इज, हर तो नहीं बोलेंगे, दिस बैग इज हर्स। ये हमारा पॉजेसिव फॉर्म है। देन इट, दिस बैग इट, इट नहीं बोलेंगे ना, तो बेटा इट का कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है। ओके, आप कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं बना पाएंगे इट का। दी बॉल इज मेड ऑफ लेदर, लेदर इज इट्स क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे ना, तो लेदर इज इट्स नहीं बोलेंगे हम, पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए जो इट है इसका कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है। देन बचा दे, दे का हमारा ऑब्जेक्ट था देम, दोज बैग्स वर देयर्स, दैट इज देयर पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, दे का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, देयर्स। नाउ ये आई मी ऑलरेडी सिंगुलर है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हैं, आवर्स प्लूरल है, मैस्कुलिन फेमिनिन है, योर्स भी बेटा सिंगुलर प्लूरल बोथ है, और ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। हिज मैस्कुलिन सिंगुलर, हर्स फेमिनिन सिंगुलर, जो इट है इसका पॉजेसिव फॉर्म है ही नहीं, और देयर्स जो है वो हमारा प्लूरल है। ठीक है, और ये मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल सभी जेंडर्स के लिए यूज़ होता है। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट कि पॉजेसिव फॉर्म हमारा क्या है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो हमारे प्रोनाउन हैं वो नाउन को बिल्कुल हटा के बनते हैं, नाउन के साथ कभी नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पर इनके साथ कोई नाउन नहीं आया इसलिए ये पॉजेसिव फॉर्म है। बट अब हम यहाँ देखें दैट एंड दिस यूज़ हुआ है, ये आप सोचेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट ऐसा नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है दैट और दिस, क्योंकि इनके साथ नाउन यूज़ हुआ है। हाउस और बैग क्या है हमारे, नाउन, और ये इनके साथ लगे हैं, तो ये हमारे दैट और दिस क्या है, प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव बन गए हैं, जो हम एडजेक्टिव चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रोनाउन है बेसिकली दे कंप्लीटली रिमूव द नाउन एंड देन अप्लाइड। ओके, वो नाउन के साथ कभी नहीं लगेंगे, बिल्कुल अलग से लगेंगे। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं। क्या नाउन प्रोनाउन है जो कि एक नाउन की जगह पर लगता है, नाउन को हटा कर लगता है, वो हमारा प्रोनाउन है, और जिस नाउन की जगह पर वो लगता है वो नाउन उस प्रोनाउन का क्या हो गया, एंटीसीडेंट। देन हमारे पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में जो पॉइंट आउट करे ऑब्जेक्ट्स को जिसके लिए वो यूज़ हो रहे हैं जिस नाउन के लिए। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछने के लिए, हु, हुज, हुम जो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, एंड व्हाट और विच थिंग्स के लिए। एंड पॉजेसिव बेसिकली शोज पोजेशन, वो चीज़ किसकी है। ठीक है, उसमें भी हमारे पर्सन्स में क्या पॉजेसिव फॉर्म रहेंगे ये आपको याद करने हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रिमेनिंग 5 टाइप्स। ओके।